Good morning, friends. In this video lecture, we are going to study the engine construction of automobile. Okay. So we will start this video lecture, which consists of the engine construction. So in engine construction, we are going to study the basic classification of engine. Based on how many types the engine classify, we will study in this video lecture. Now, the first classification is based on the type of ignition engine. So, in the type of ignition engine, there are basically two types. One is called as the spark ignition engine, which is also called as the SI engine, and the second engine is called as the compression ignition engine, that is called as the CI engine. Okay. So, in spark ignition engine, the fuel use is petrol fuel. Is the petrol. Fuel use is petrol, and in compression engine, the fuel use is diesel. Okay, these are the two types of fuels. Okay, petrol and diesel. Petrol engine is called as the spark ignition engine. Diesel engine is called as the CI engine. Okay, so this is the diagram of the spark plug given here. We have seen in the two wheelers mostly. This is the spark plug. Okay, we will see the construction feature of spark plug in subsequent slides. Okay, now the second classification is based on the cycle of operation. साइकिल ऑफ ऑपरेशन के ऊपर हम लोग इंजन को कैसे क्लासिफाई करेंगे. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑटो साइकिल इंजन विच इज बेस्ड ऑन द ऑटो साइकिल. ओके, ये ऑटो ने साइकिल डिजाइन किया हुआ है. आप अगर पीवी डायग्राम निकालते हो, पीवी डायग्राम के ऊपर जो भी अपने को साइकिल दिखेगी उसको बोलेंगे हम लोग ऑटो साइकिल. देन द डीजल साइकिल. डीजल साइकिल ये हम लोग देखेंगे आगे में. देन डीजल साइकिल दिस इज बेस्ड ऑन द diesel cycle engine. Then the dual cycle. Some portion of the Otto cycle and some portion of diesel cycle we mix together and we form a dual cycle engine. Okay. जो पीवी डायग्राम पे जो भी साइकिल बनेंगी, पीवी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो साइकिल. दिस इज दी ऑटो साइकिल. ओके, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. 1 to 2 क्या होगा? कंप्रेशन होगा. देन 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा. 3 to 4 क्या होगा? एक्सपांशन होगा. एंड 4 to 1 क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा. दिस इज कॉल्ड एज द ऑटो साइकिल. देन द थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज द बेस्ड ऑन द इंजन साइकिल पर स्ट्रोक. तो द थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज द बेस्ड ऑन द इंजन साइकिल पर स्ट्रोक. तो जो स्ट्रोक है पिस्टन का वो कितने बार मूवमेंट दे रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंजन साइकिल को क्लासिफाई करेंगे. तो बेसिकली टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड द 4 स्ट्रोक इंजन एंड सेकंड कॉल्ड द 2 स्ट्रोक इंजन. 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा? 4 स्ट्रोक होंगे. कौन कौन से? फर्स्ट इज कॉल्ड द इनटेक, उसको बोलेंगे इनटेक. द डायग्राम इज गिवन हियर. फर्स्ट कॉल्ड द इनटेक. द सेकंड इज कॉल्ड द कंप्रेशन. दूसरा स्ट्रोक कौन सा रहेगा? कंप्रेशन रहेगा. तीसरा स्ट्रोक क्या रहेगा? एक्सपांशन रहेगा और इट इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक. तीसरा क्या रहेगा? एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक. देन द लास्ट वन, फोर्थ वन कौन सा रहेगा? इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इन द फर्स्ट स्ट्रोक द एयर फ्यूल मिक्सचर इज टेकन इनसाइड द सिलेंडर एंड इन सेकंड कंप्रेशन द एयर फ्यूल मिक्सचर इज गेट्स कंप्रेस्ड. ओके, इन द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन. जो भी इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम होता है वहां पे क्या होगा? एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होगा. देन इन द पावर स्ट्रोक का एक्सपांशन क्या होगा? द स्पार्क प्लग इग्नाइटेड as we compress the air fuel mixture inside the cylinder. By the compression stroke, the pressure and temperature of the air fuel mixture gets increased, and at the high pressure the spark plug ignited. As the spark plug ignited high pressure, there is the there is the power stroke occurs. Expansion of the fuel and air compressed air is given in the clearance volume, and the power developed by this expansion is given to the piston in the forward direction. This is called the power stroke. And the water in the four stroke, what will happen in the last exhaust stroke? The exhaust gases are released from the cylinder. This is called as the exhaust stroke. So the engine which is based on this 4 stroke are called as the 4 stroke engine. Then the second is 2 stroke engine. In this 2 stroke engine there is only intake and
power stroke. Two stroke only there. There is intake and power stroke only. Okay. So in the four-stroke engine, we require two revolution of crankshaft in four-stroke engine, and in two-stroke engine we require one revolution of crankshaft. Okay, so this is called the four-stroke engine and two-stroke engine classification. Then the next classification is based on the fuel we use. हम कौन सा फ्यूल यूज करने वाले इंजन के उसके ऊपर हम इंजन को क्लासिफाई करेंगे. The first one is called the petrol engine. Simple. In this engine we will going to use the petrol as a fuel. Then the second is called as a diesel engine. In this engine we are going to use diesel as a fuel. And second is the gas engine. In this we generally use LPG, liquefied petroleum gas, or CNG. It is called as the compressed natural gas. Generally used, and most of the four vehicles are based on the LPG and CNG nowadays. Okay. Now we will move to the further classification. The fifth classification is based on the method of the cooling. इंजन को कूल कैसे किया जाता है उसके ऊपर क्या दिया हुआ है. The type of engine is given, classified. The first classification is called as the air cooled engine. In this the engine is classified on the based of air cooled engine. In this engine is cooled with the help of natural air. And the second is called as the water cooled engine. In this engine is cooled, or the cooling of the engine will be occur by the water or any coolant. जनरली कौन सा होता है रेफ्रिजरेंट कूलर, कौन सा है 134A कूलेंट यूज किया जाता है. ओके. देन द सिक्स्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स वी हैव इन द इंजन. इंजन के अंदर में कितने सिलेंडर्स है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंजन को क्लासिफाई करते हैं. इफ you have the single cylinder and single piston is called the single cylinder engine. If your engine having the two cylinder and two piston is called a two cylinder engine, and so on. 3 cylinder 3 piston, 4 cylinder 4 piston, and so on. We have up to the 16 cylinder engine. In the 16 cylinder engine we have the 16 cylinders and 16 piston. Then the next classification is based on the arrangement of cylinders. If the engine is placed as horizontal level, or horizontally if we place the engine is called as the horizontal engine. If the engine is placed in vertical direction is called as the vertical engine. Here the diagram of the engine, vertical engine is given here. This is called as the vertical engine. If you see, this is the cylinder of the vertical engine. This is the cylinder block, cylinder head. Okay, this is the piston we are given here. Then the radial engine. The engine cylinder is placed radially, are called as the radial engine. Okay, this is the diagram, basic diagram. These are the pistons. This is called as the radial engine. Okay, then the fourth one is called as the V engine. V engine, here the diagram of the V engine is given here. This is called as the V engine. This is look like a V shape. That's why it is called as the V engine. Okay. Then the fourth one is called as the opposite cylinder engine. The cylinders are placed opposite to each other, or that's why it is called as the opposite engine. Okay, this is the cylinder and this is the piston. This is called as the opposite cylinder engine. Now we will move further. Now we will, in this slide we are going to understand the construction features of the engine. इंजन के कौन कौन से ऑटोमोबाइल इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. डायग्राम, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन्स आर गिवन हियर. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सिलेंडर ब्लॉक. जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वन है जो हमारा इंजन का मेन सिलेंडर ब्लॉक बोलेंगे, वो हार्ट भी बोलेंगे, सिलेंडर इंजन का हार्ट भी बोलेंगे. इसको बोलेंगे हम लोग सिलेंडर ब्लॉक को. सिलेंडर ब्लॉक इज द हार्ट ऑफ द इंजन. देन सेकेंड इज सिलेंडर हेड, जो कि माउंट होता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर. देन द क्रैंकेस. फोर्थ वन इज द ऑयल सम और ऑयल पेयर. फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज सिलेंडर लाइनर्स. सिक्स्थ इज द पिस्टन. सेवंथ इज द पिस्टन रिंग्स. 8 connecting rod. 9 crankshaft. 10 flywheel. 11 camshaft. 12 spark plug or fuel injectors. Spark plugs are used in the SI engine, that is petrol engine, and the fuel injector is used in the diesel engine. Then 13 is the valve and 14 is the valve mechanism. These are the 14 major components of the
engine, automobile engine. In the diagram you are see here, the this is the first one is the fan here, then the fan belt which is connected to the engine shaft, distributor, wall springs. Okay, in PVC housing, the air filter is given here, gas pump. These are the exhaust manifold. Okay, these are the exhaust manifold. These are the spark plug, engine block. This is the total engine block, exhaust point, oil filter. Okay, this is cylinder head cover. So this is the basic structure of the radiator house, oil drain plug, gap, wall spring, distributor, alternator. These are the total components of the engine. Here basically the timing open structure of the engine is given here. Here the camshaft is given. This is the camshaft total. These are the walls. These are the walls. Walls. These are the walls. Okay, this is the camshaft. The camshaft, the walls are driven by the camshaft, cam mechanism. Okay, this is the distributor. These are the piston. Okay, the crankshaft. Okay, the alternate is the timing belt. Okay, these all are run by the properly alternator या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से हम लोग इसको अभी कंट्रोल करते हैं, स्पार्क प्लग टाइमिंग को, स्पार्क टाइमिंग को. ओके, ईसीयू बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट we are properly open the inlet wall and exit wall at a particular time. Okay, nowadays ECU models are used in the four wheelers. Now we will see the major components of the engine. First one is called as the cylinder block. This is the inside the plant, अंदर में रहेगा पूरे इंजन का. It is the main body of the engine, contains the cylinder. ठीक है, ये क्या है, इंजन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंजन को रिजिड बनाता है. इट हाउसेस द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक, पिस्टन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन. ये सबको इनगल्व कर लेता है. क्रैंकशाफ्ट भी इसके अंदर फिट रहेगा, क्रैंकशाफ्ट भी रहेगा, पिस्टन रहेगा, अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन. द मटेरियल यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज जनरली बेस्ड इज ग्रे कास्ट आयरन. ये क्या होता है, और एल्यूमिनियम और स्टील स्लीव्स. जनरली ग्रे कास्ट आयरन यूज करते हैं, या लाइट वेट करना है तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे, और स्टील स्लीव्स हम लोग यूज करेंगे. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिलेंडर ब्लॉक. दिस holes are given. This is called as the cylinders. Okay, you are see the machine surface. This is the proper machine surface. These are the cylinders. This is the block portion. Okay, crankshaft, upper bearing, camshaft bearing. ये camshaft के लिए भी this is the hole is given in the camshaft for the opening and closing of the inlet and exhaust valve. Crankshaft, upper bearing, camshaft bearing, and the fan belt hole. Okay, these are the basic structure of the cylinder blocks are given in the diagram. Now the second component is the cylinder head. Okay, cylinder head is bolted on the top of the cylinder block. ठीक है, it inlet and exhaust through which is taken inside the gas and burn exhaust. ठीक है, तो सिलेंडर हेड में क्या रहेगा, इनलेट एग्जॉस्ट वॉल की वॉल हम लोग वहां पे देंगे, स्पार्क प्लग वहां पे देंगे हम लोग सिलेंडर हेड के ऊपर. ठीक है, एंड दिस इज बोल्टेड ऑन दिस सिलेंडर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ गास्केट. दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर. दिस डायग्राम ऑफ द सिलेंडर हेड इज गिवन. इट इज बेसिकली मेड ऑफ कास्ट आयरन और aluminum alloy. The main function of the cylinder head is to give the space for the walls, spark plug. Okay, wall on the spark plug. It is also on the cylinder head. There are also fins for natural cooling. Okay, नेचुरल कूलिंग के लिए सिलेंडर हेड के ऊपर भी फिन्स लगी रहती है. ओके, स्पार्क प्लग भी कहाँ से जाएगा, सिलेंडर हेड में से जाएगा. इनलेट एग्जॉस्ट वॉल भी कहाँ पे रहेगा, सिलेंडर हेड में से ही सिलेंडर में जाएगा. ओके, इट प्रोवाइड द हाउसिंग टू द वॉल्स एंड द स्पार्क प्लग is the cylinder head. Now the third main important portion parts of the engine is crankcase. It is the integral part of the cylinder block separately bolted to the cylinder block. ये जो crankcase है, this is the integral part है, सबसे important part है cylinder block का.
इट सपोर्ट्स द क्रैंकशाफ्ट एंड द कैमशाफ्ट विद द हेल्प ऑफ बेरिंग। तो नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है, किसको सपोर्ट करता है? क्रैंकशाफ्ट को और कैमशाफ्ट को सपोर्ट करता है। ये प्रॉपरली पूरा का पूरा सील कर देगा नीचे का पोर्शन। इट विल कवर द लोअर पोर्शन ऑफ द इंजन, इज कॉल्ड एज द क्रैंकेस। जो क्रैंकेस होता है ये क्या होता है? कवर करता है लोअर पोर्शन ऑफ द इंजन को। क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट करता है, कैमशाफ्ट को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ द इंजन ऑयल। ओके, जो भी इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं इंजन के अंदर में, वो कहाँ पे स्टोर होता है? क्रैंकेस के जो बॉटम पोर्शन होता है वहां पे वो इट विल बी stored at the bottom portion of the crankcase. Okay, this is the basic diagram. This is the crankcase. Okay, this is the total crankcase. Now the fourth is the oil sump or oil pair, fitted at the bottom of the crankcase by using gasket and contains the lubricating oil. तो ऑयल सम जो बोला है मैंने आप लोगों को बोला है इट विल क्रैंकेस के बारे में बताया। तो क्रैंकेस के नीचे में एट द बॉटम ऑफ द क्रैंकेस होता है ऑयल सम्प और ऑयल पेयर। वहां पे क्या होगा? इंजन ऑयल वहां पे स्टोर्ड होगा। इट इज मेड अप ऑफ प्रेस स्टील शीट, प्रेस स्टील शीट से बना रहेगा। ओके, समझ में आ गया ऑयल सम्प और ऑयल पेयर। देन द फिफ्थ वन इज द सिलेंडर लाइनर्स। सिलेंडर लाइनर्स ये किसके लिए बना रहा है? किस चीज के लिए होता है? Inside the cylinder piston constantly reciprocating causes the wear and tear. Replacing the cylinder block costly in cylinder liners placed inside the cylinder and replaced when worn out. ठीक है, तो सिलेंडर लाइनर्स क्या होता है? ये जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल में यहाँ पे दिस इज द इंजन सिलेंडर, दिस इज द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में क्या होगा? पिस्टन और पिस्टन continuously reciprocating होगा and it will wear out the internal part of the cylinder. तो इंटरनल पार्ट ऑफ द सिलेंडर अगर वेयर आउट होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा एंड इट इज मोर कॉस्टली। और सबसे ज्यादा जो कॉस्टली क्या रहेगा? वो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है इंजन का, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, हाईली मशीन सरफेस होता है। तो टू प्रिवेंट सच लॉसेस, इकोनॉमिकल लॉसेस, वी विल यूज द सिलेंडर लाइनर्स। हम लोग क्या यूज करेंगे? सिलेंडर लाइनर्स यूज करेंगे। वो कहाँ पे डालेंगे? इनसाइड द सिलेंडर स्पेस। जो सिलेंडर्स की स्पेस है उसमें हम लोग सिलेंडर लाइनर फिट कर देंगे, सिलेंडर लाइनर हम लोग फिट कर देंगे। एंड व्हेन द रेसिप्रोकेटिंग ऑफ द पिस्टन विल बी अकर, इट विल क्रिएट द वेयर एंड टियर इनसाइड द सिलेंडर लाइनर्स। जो भी वियर होगा वो किसका होगा? सिलेंडर लाइनर्स का होगा, ना कि सिलेंडर ब्लॉक का होगा। ठीक है, it will not create the wear to the cylinder block, rather than it will create the wear and tear on the cylinder liners. तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी लाइनर्स worn out होंगे, wear out होंगे, तो हम लोग लाइनर्स को निकालेंगे, ना कि सिलेंडर ब्लॉक को निकालेंगे। तो we are going to replace the cylinder liners which are cheaper than the cylinder block, which are cheaper than the cylinder block. These are the cylinder liners. There are two types of the cylinder liners. One is the dry and wet liners. इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल निकेल क्रोम प्लेटेड माइल्ड स्टील या ट्यूब स्टील से बना रहेगा। नाइक्रोम या क्रोम स्टील से, माइल्ड स्टील से बना रहेगा और स्टील ट्यूब से बना रहेगा। ओके, तो सिलेंडर लाइनर्स, दीज आर द फिफ्थ पार्ट ऑफ द। नाउ द सिक्स्थ वन इज द पिस्टन। पिस्टन क्या करता है? रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर एंड serve the following purposes. Movable gas tight seal to keep the gas inside the cylinder. Transmit the force of explosion to the crankshaft through the connecting rod. सिंपल है। ये क्या करेगा? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा इनसाइड द सिलेंडर। इट विल कंप्लीट द स्ट्रोक्स इनसाइड द सिलेंडर। It will provide the seal tight to the gases which are developed inside the cylinder. Then after the explosion inside the cylinder, after the explosion of air fuel mixture inside the cylinder, it will transmit the power of the gases to the crankshaft and the connecting rod. जो भी पावर स्ट्रोक में जो भी पावर डेवलप होगा वो पावर किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा? पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट करेगा। एंड दिस वो जो पावर पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो पावर पिस्टन ट्रांसमिट करेगा। किस किस को ट्रांसमिट करेगा? क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट करेगा, देन कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसमिट करेंगे। एंड दिस कनेक्टिंग रॉड
कहाँ जाएगा, पहले कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसमिट करेगा, देन क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट करेंगे, एंड दिस क्रैंकशाफ्ट गिवन रोटेटिंग मोशन टू दी व्हील्स, उसके ऊपर ट्रांसमिट करेगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द पिस्टन। इट इज द लीक प्रूफ जॉइंट प्रोवाइड करता है पिस्टन, प्लस पावर ट्रांसमिट करेगा ऑफ द एक्सप्लोजन गैसेस। इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय और निकेल क्रोम अलॉय और निकेल आयरन अलॉय और कास्ट स्टील। ये इतने कंपोनेंट से बनता है, अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय और निकेल क्रोम अलॉय और निकेल आयरन अलॉय और कास्ट स्टील। द सेवन इज कॉल्ड द पिस्टन रिंग्स। Seven part 8 is called as the piston rings. It will provide the airtight sealing between the piston and the cylinder to prevent the gas leakages. ये जो piston rings है, ये क्या function है इसका? It will provide the airtight sealing to the piston and the cylinder to prevent the gas leakages. Gas leakages कहाँ से prevent करेंगे? Inside the cylinder में जो भी explosion होता है गैस का, वो जो गैस है, वो गैस नीचे नहीं आने चाहिए in the crankcase. अगर क्रैंकेस में आएगा तो क्या होगा, इट विल बर्न इनसाइड द क्रैंकेस। इफ द एयर फ्यूल गैसेस आर कमिंग इनसाइड और बर्न गैसेस आर कमिंग इनसाइड द क्रैंकेस, ये क्रैंकेस है, इन द क्रैंकेस देयर इज द इंजन ऑयल, इसमें क्या होता है, इंजन ऑयल होगा। ठीक है, ये गैसेस नीचे नहीं आना चाहिए, प्लस ये इंजन ऑयल ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ द इंजन ऑयल इज गोज इनसाइड द कंबशन चेम्बर, तो कंबशन चेम्बर में अगर इंजन ऑयल के पार्टिकल चले गए तो इट विल प्रोवाइड द स्मोक, और गाड़ी से हम ब्लैक जो धुआं निकलता है वो इंजन ऑयल कहाँ पे, कंबशन चेम्बर में जाने के कारण वो क्या होता है, हमें ब्लैक स्मोक निकलता है साइलेंसर में से। जनरली ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पिस्टन रिंग्स। अगर ऐसे आपके बाइक में से या फोर व्हीलर में से ब्लैक स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक, तो समझ जाना आपकी पिस्टन रिंग्स जो है वो वियर आउट हो गई है, पिस्टन रिंग्स खराब हो गई, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है पिस्टन रिंग्स का फंक्शन। क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड दी एयर टाइट सीलिंग बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर टू प्रिवेंट द गैस लीकेजेस। टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स आर अवेलेबल, वन इज कॉल्ड द कंप्रेशन रिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड द ऑयल रिंग। जो कंप्रेशन रिंग का फंक्शन क्या है, द कंप्रेशन रिंग का फंक्शन है एयर टाइट सील जो है वो प्रोवाइड करना बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। और ऑयल रिंग का क्या फंक्शन है, ऑयल रिंग का फंक्शन है जो भी ऑयल, इंजन ऑयल जो है सिलेंडर लाइनर्स के ऊपर जो हम लोग लुब्रिकेशन के लिए डालते हैं उसको नीचे लेके आना वापस। ठीक है, वापस ऑयल को, जो द ऑयल विच आर स्टिक्स ऑन टू द वॉल ऑफ इनसाइड वॉल ऑफ द सिलेंडर, इट विल ट्रैप बाय द ऑयल रिंग एंड इट विल मूव डाउनवर्ड इनसाइड दिस इंजन ऑयल पैन। तो इंजन ऑयल का, ऑयल रिंग का फंक्शन क्या है, जो ऑयल स्टिक होता है इनसाइड द सिलेंडर वॉल उसको निकालना। दिस द फंक्शन ऑफ द ऑयल रिंग। इट इज पिस्टन रिंग्स मेनली मेड अप ऑफ alloy cast iron with silicon or magnesium, alloy steel coated with chromium or cadmium here, this is the cadmium. Okay, then the eighth component is called the connecting rod. It connects the piston and the crankshaft with the help of bearing. कनेक्टिंग रॉड किससे होता है, कनेक्ट रहेगा किससे, पिस्टन के साथ में और क्रैंकशाफ्ट में, विद द हेल्प ऑफ बेरिंग। स्मॉल एंड कनेक्टेड विद द पिस्टन एंड बिग एंड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक। जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन के साथ में कनेक्ट रहेगा, एंड बिग एंड जो कनेक्टिंग रॉड का है किसके साथ में कनेक्ट रहेगा, क्रैंक के साथ में कनेक्ट रहेगा। इट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज, इट इज द फॉर्ज स्टील, फॉर्ज स्टील। और ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनता है, फोर्जिंग से। It is made up of forging, not the casting. Why it is made up of forging? Because forging gives more strength rather than the casting manufacturing process. Casting से बनाया हुआ connecting rod ये थोड़ा सा कम strong होता है than the forging. Forging provide the better stability, better strengthness to the connecting rod. That's why it is made up of forged steel. It is also provide the passage to transfer the lubricating oil. जो कनेक्टिंग रॉड है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करता है, ट्रांसफर करने का आगे भी काम करता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड। दिस इज द पिस्टन, this is the piston and the connecting rod is connected with the help of gudgeon pin,
इसको हम लोग गडजन पिन बोलेंगे, ठीक है। एंड दी कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन, इसको हम लोग क्रैंक पिन बोलेंगे, ठीक है। देन these आर द टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स। द अपर पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड द पिस्टन क्राउन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टन क्राउन बोलेंगे, ओके। these आर द बेसिकली टू कॉम्प्रेशन रिंग्स होती है, टू कॉम्प्रेशन रिंग्स, एंड द बॉटम वन इज कॉल्ड द वन ऑयल रिंग, जो नीचे वाली रिंग होती है इट इज कॉल्ड द ऑयल रिंग, दिस द कॉम्प्रेशन रिंग्स, दिस द ऑयल रिंग, ओके। This is the diagrammatic representation of piston, connecting rod, oil ring and compression ring. The ninth component is called as the crankshaft. जो नाइन्थ कंपोनेंट है इट इज कॉल्ड द क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। जो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है पिस्टन का, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पावर डेवलप बाय द कंबशन ऑफ द गैसेस। वो किसको ट्रांसमिट किया जाएगा, क्रैंकशाफ्ट को, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो क्या करेगा कनेक्टिंग रॉड, रेसिप्रोकेटिंग ऑफ द मोशन ऑफ द पिस्टन इज कन्वर्टेड इनटू द रोटरी मोशन। तो क्रैंकशाफ्ट का मेन काम क्या है, it will convert the reciprocating motion of the piston into the rotary motion, okay. Then the crankshaft gear vibration damper provided front end, crankshaft gear भी इसको support करता है, damper भी दिया जाता है। flywheel is mounted at the rear end of the crankshaft, जो flywheel है, flywheel is generally used to store the power, okay। तो कहाँ पे हम लोग माउंट करते हैं, एट द रेयर एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के रेयर एंड जो होता है उस पर हम लोग फ्लाईव्हील माउंट करते हैं, टू स्टोर दी व्हेन द इंजन इज इन आइडियल कंडीशन, टू स्टोर द इंजन, टू स्टोर द पावर ऑफ द इंजन, जनरली वी विल यूज द फ्लाईव्हील। देन द मटेरियल यूज्ड फॉर द क्रैंकशाफ्ट इज कार्बन स्टील एंड द निकेल क्रोमियम, कार्बन स्टील एंड द निकेल क्रोमियम, ये हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। ऑल इट इज हीट ट्रीटेड अलॉय स्टील आल्सो यूज्ड। This is the diagrammatic representation of the crankshaft is given. This is the main bearing journals. Okay. Then these are the mount of the mount for the crankshaft and the drive space, main general. Then the web. This is called as the web. This is the main journal. This is the main journal. Main journal. Crank pin. Okay. Crank pin is fitted here. Okay. इन दी फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लेंज, ये जो दिख रहा है आपको, ये रेयर एंड दिख रहा है आप लोगों को, ये किसके लिए होता है, इट विल यूज फॉर द माउंटिंग ऑफ द फ्लाईव्हील, ओके। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस द डायग्राम ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। नाउ द थर्ड 10th पार्ट इज द फ्लाईव्हील, हेवी परफेक्टली बैलेंस्ड व्हील सिचुएटेड एट द रेयर एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जो फ्लाईव्हील होता है, हेवी स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है। बोला मैंने तो ये पावर जो सेव होता है आइडियल कंडीशन में, जब इंजन रन होता है तो जो भी पावर डेवलप कर रहा है इंजन, वो किस में सेव होगा, फ्लाईव्हील में सेव होगा, वो एनर्जी सेव होगी फ्लाईव्हील में। स्टोर द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड रिलीजेस इन द अदर स्ट्रोक। जो पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी जनरेट होती है वो फ्लाईव्हील स्टोर करती है, और जब बाकी जो स्ट्रोक में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी वो स्ट्रोक में प्रोवाइड करता है, कौन, फ्लाईव्हील। The main material used for the flywheel manufacturing is cast iron और cast steel। जो flywheel है किससे बना रहेगा, cast iron से बना रहेगा या cast steel से बना रहेगा। Then the 11th component is called as the camshaft, camshaft, okay, converts the rotary motion of the camshaft into the linear motion of the follower। ठीक है, ये कैम है, दिस इज द कैम स्ट्रक्चर, एंड इसके ऊपर क्या रहेगा, एक फॉलोअर रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहेगा, फॉलोअर, ये रोटेट होगा, दिस इज कॉल्ड द फॉलोअर एंड दिस इज कॉल्ड द कैम। ये क्या होगा, वर्टिकल मोशन, लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा, कौन, फॉलोअर। कौन किसके कारण प्रोवाइड करेगा, विद द हेल्प ऑफ कैम, ठीक है। तो कैम क्या होगा, कैम विल बी रोटेड इन द रोटरी डायरेक्शन, इट विल बी रिवॉल्व इन द circular direction, and it will give the follower to the linear motion. So convert the rotary motion of the camshaft into the linear motion of the follower. Operates the inlet and exhaust valve through the rocker arms। और ये जो camshaft है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या करता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म, इट इज कॉल्ड द रॉकर आर्म्स। उसको हम लोग रॉकर आर्म से या वॉल स्प्रिंग से पूरा का पूरा हम लोग उसको डिजाइन करेंगे,
और ये जो कैम शाफ्ट है उसको पूरा ऑपरेट करता है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग को। इट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट थ्रू द चेन एंड गियर ट्रेन। हाँ, जो कैम शाफ्ट है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो कौन ड्रिवन करता है? क्रैंक शाफ्ट। बिकॉज क्रैंक शाफ्ट के पास में पावर आता है किसके थ्रू? पिस्टन के थ्रू। किसका पावर? एयर फ्यूल मिक्सचर का एक्सपांशन का पावर किसमें किसको आता है? क्रैंक शाफ्ट को। और क्रैंक शाफ्ट क्या क्या करता है? इंजन को क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? जो हमारे ड्राइविंग व्हील्स होते हैं उसको भी रन करेगा, हमारा जो कूलिंग फैन होता है उसको भी रन करेगा, हमारा जो कैम मैकेनिज्म होता है उसको भी रन करेगा। तो जो भी पूरा का पूरा जो पावर डेवलप होता है इनसाइड द सिलेंडर, इट इज 100% इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द रोटरी डायरेक्शन और रोटरी मोशन ऑफ द व्हील्स। इट विल बी कंज्यूम इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस। तो जो भी अलग अलग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो है उसमें का कुछ 100% में से कुछ पावर हम लोग ये सारी चीजें जो है फैन, इंजन फैन हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, ऑयल पंप हो गया, इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दैट्स वाई द इफिशियंसी ऑफ द इंजन गेट्स रिड्यूस्ड। उसके कारण जो इंजन की इफिशियंसी मिलती है हम लोग कम मिलती है। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड फॉर द कैमशाफ्ट इज चिल्ड आयरन और चिल्ड आयरन कास्टिंग्स और बिलेट स्टील। This is the diagrammatic representation of the camshaft. Then the 12th part is called the spark plug or the fuel injector. तो spark plug जो है it is used to ignite the air fuel mixture in the SI engine। तो SI engine में जो air fuel mixture होता है उसको ignite करने के लिए हम लोग spark plug use करेंगे। And the fuel injector is used in the diesel engine or compression engine or CI engine because to inject the fuel in the compressed form, it is called as the air fuel injector or fuel injector. Okay, this is the diagrammatic representation of the spark plug is given. This is the terminal, this is the insulator, then shell, this is the gasket, these are the threads, this is the center electrode and the side electrode. There is a gap of the air and this is here this spark taken place. Okay, from this the current supply will be given from the battery to the spark plug. And this is the diagrammatic representation of the fuel injector. This is the pintle cap. From this the fuels are injected inside the cylinder in the small fine particles। इसमें क्या होता है, जो गैस है, जो सॉरी फ्यूल है, उसको स्मॉल फाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? इंजेक्ट करता है इनसाइड द सिलेंडर। ओके, नाउ द 13 कंपोनेंट इज द इंजन वॉल। इंजन वॉल जो है, these are used for closing and opening passage for the cylinder for intake and the exhaust. It is operated by the cam follower mechanism। जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल जो है वो किससे बने रहेंगे? हाई स्पीड स्टील से बने रहेंगे। और इसको ऑपरेट कौन करेगा? कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। दिस डायग्राम ऑफ द वॉल इज गिवन, इंजन वॉल इज गिवन। दिस कॉल्ड द वॉल, दिस कॉल्ड द वॉल सीट, वॉल सीट भी बोलेंगे। स्प्रिंग, रॉकर आर्म, दिस इज लोअर रॉकर आर्म, दिस इज द अपर रॉकर आर्म, opening lobe, closing lobe and the camshaft। Okay, here the hydraulic mechanism of the crankshaft is given। The cam, this is the follower, it is operated with the help of hydraulic pump and it will open and close the wall। This is called the wall spindle, this is called the wall spindle। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? wall spindle बोलेंगे। और जिसके ऊपर ये रेस्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे wall seat। The wall spindle is rested on to the portion is called as the wall seat। जिसके ऊपर wall open या close होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? wall seat बोलेंगे। okay, this is the structure of the engine wall। this is the continuously variable wall timing, VVT बोलते हैं या इसको लिफ्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।